Hi friends, in today's session we'll start with a few numerical based on STP and NTP. Many students having some doubt in STP and NTP part. So let's discuss some of this MCQ based on this STP part. Now first question is H2 evolved at STP. STP का मतलब होगा standard temperature and pressure. On the complete reaction of 27 gram of aluminum with excess amount of aqueous NaOH would be, and then you are given a 4 option. चार जो ऑप्शन दिए हुए चार ऑप्शन इस हिसाब से है. फर्स्ट इज 22.4, सेकंड इज 44.8, थर्ड इज 67.2 एंड लास्ट इज 33.6. तो सबसे पहली चीज आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए. इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए इसका मतलब क्या होगा कि यू आर हैविंग अ H2O plus Al plus NaOH. Why H2O? Just because we are having a aluminum solution. Next, NaOH means clearly बताया हुआ है aqueous NaOH. So aqueous NaOH is all about NaOH plus water. So aluminum, weight aluminum is 27. Now chemical balancing reaction वो किस में convert होगा तो NaAlO2 and 3/2 H2 is released. So now this you have to balance by your own ways. There is no shortcut trick. But आपको पता चल जाएगा कि सोडियम एंड एल्यूमिनियम कंबाइन होके सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है. कैसे? तो सर एल्यूमिनियम हैविंग 3 वैलेंसी, one is occupied by sodium and another is occupied by O2. So basically it's converted to NaAlO2 and remaining is 3/2 H2. Now at STP any gas having 22.4 liter. At STP any gas having volume is 22.4 liter. So if I have a 1 mole of aluminium, I get 3/2 mole of H2. So 3/2 multiplied by 22.4, cross multiplication कीजिए, simplify, you get 33.6 liter. That is your answer. Second statement क्या है? Second statement है a hydrocarbon contain 86% of carbon, 488 ml of hydrocarbon, weight is 1.68 gram at STP. Now your component is made up by this only two component, that is called hydrogen and carbon. कैसे पता चला? क्योंकि clearly बताया हुआ a hydrocarbon contain 86% of carbon. So total is always 100%. तो remaining 14% is your hydrogen, क्योंकि 86% कार्बन है. अब ये जो हाइड्रोकार्बन है अगर उसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम 488 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसका वेट कितना है 1.68 ग्राम एट STP, देन द हाइड्रोकार्बन इज. तो सबसे पहले मोलर रेशियो चेक कर लीजिए. मोलर रेशियो किस हिसाब से है? कार्बन इज 86, दैट इज गिवन डेटा. टोटल इज ऑलवेज 100%, तो हाइड्रोजन इज 14, एटॉमिक वेट इज 12, एटॉमिक वेट इज 1. सो ये बन गया आपका, ये डिवाइड करोगे तो 7.1, ये बन गया 14. सो दिस इज 1 and 2, तो ये रेशियो क्या हो गया CH2. फाइन. अब ये CH2 आ गया तो CH2 से किस हिसाब से पता चलेगा आपको? आपका फॉर्मूला किस हिसाब से बनेगा? CH2 इज नथिंग बट CnH2n. एक कार्बन दो हाइड्रोजन, तो CnH2n का मतलब क्या हो गया? योर कंपोनेंट इज अल्कीन इन नेचर. Next is statement number 3. 1.12 ml of a gas is produced at STP by the action of 4.12 milligram of alcohol with methyl magnesium iodide. The molar mass of alcohol is. So now the reaction, most important ये organic reaction है, किस हिसाब से? तो ROH. ROH का मतलब होगा alcohol. When treated with methyl magnesium iodide means CH3MgI. So basically अल्कोहल में से जो ये H है वो चला जाएगा कार्बन के पास and you get CH4. Now what is left in this side? Mg, OR and I. This is थोड़ा सा ये डैश हो चुका है बट समझ जाइएगा. Mg के साथ OR और ये I जुड़ा हुआ है और ये जो H है वो चला गया CH3 के पास. तो what you get CH4. Now, if I have a 1 mole of alcohol, I get 1 mole means 22.400 ml of this. So 1.12 ml gives how many grams?
तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। जो अगर मेरे पास 1.12 ml ऑफ गैस है उसका मास है 4.12 मिलीग्राम। सो 22,400 ml के लिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यू गेट योर आंसर दैट इज 82.4। So this is 82.4 है, this is a typo error, this is 82.4, you get your answer is C कलकत्ता। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, you get your answer। Next is on your board is numerical number 4। So what will be the volume of CO2 at NTP obtained on heating 10 gram of 90% pure limestone? Now limestone is nothing but CaCO3. When it decomposes you get CaO plus CO2। अब मान लीजिए कि मेरे पास 100 ग्राम CaCO3 है बट प्योरिटी कितनी है 90 ग्राम, तो रिमेनिंग 10 ग्राम क्या हो जाएगा, कोई इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। सो हियर इन केस आई हैव 10 ग्राम, उसका 90% प्योरिटी मीन्स 9 ग्राम हो गया ऑब्वियसली। नाउ CaCO3 का मोलर मास कितना है 100, सो 9 डिवाइड बाय 100 करोगे तो मोल कितना हो गया 0.09 मोल। नाउ स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस देखिए, इफ आई हैव 1 मोल ऑफ CaCO3 आई गेट 1 मोल ऑफ CO2। तो जो अगर मेरे पास ये 0.09 है तो सामने ये कितना मिलेगा 0.09 मोल। सो एट NTP द वॉल्यूम ऑफ CO2 इज नथिंग बट 0.09 मल्टीप्लाई बाय 22.4, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यू गेट योर आंसर दैट इज 2.016 लीटर। योर आंसर बी इज राइट। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या है मेरे पास 10 ग्राम ऑफ CaCO3। व्हेन CaCO3 हीटेड इट्स कन्वर्टेड इनटू CaO plus CO2, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस क्या है, इफ आई हैव 1 मोल ऑफ CaCO3 आई गेट 1 मोल ऑफ CaO एंड 1 मोल ऑफ CO2। मेरे पास क्या है 10 ग्राम ऑफ CaCO3 बट प्योरिटी कितनी है 90%। सो 10 ग्राम के अंदर 9 ग्राम जो है वो प्योर है 100%। सो 9 डिवाइड बाय 100, सर ये 100 कहां से आया, CaCO3 का मोलर मास। सो व्हाट आई गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 0.09। Why CO2b is equivalent? Just because 1 mole is equivalent to 1 mole of CO2। तो मेरे पास जितना CaCO3 है उतना ही CO2 बनेगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव 0.09 मोल। सो एट NTP CO2 के नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4, यू गेट योर आंसर। ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल स्टेटमेंट नंबर 5, 7.5 gram of a gas is occupy 5.8 liters of volume at STP gas is। तो 5.8 liter of gas having mass कितना 7.5, तो 22.4 liter gives how much? Once again a cross multiplication, 22.4 multiplied by 7.5 divided by 5.8, you get your 28.96। अब 28.96 is approximately 29, so it's equivalent to approximately 29 हो गया। अब ऊपर दिए हुए 4 ऑप्शन में से किसका ऑप्शन बन रहा है 29 के आसपास। नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, N2O, CO एंड CO2। अब ये सभी का सम करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जिसका भी आंसर 29 के आसपास आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर नियर इक्वल टू क्या बनेगा, सो माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज 29, सो माय फॉर्मूला मास इज कंपाउंड NO। ये अप्रोक्सीमेटली जाएंगे तो NO बनेगा। नेक्स्ट, 1 liter of gas at STP weight is 1.16 gram। It can be possible means क्या हो सकता है, so that is 1 liter at STP having weight कितना है 1.16, so 22.4 liter gives how much, so 22.4 multiplied by 1.16, once again approximately value आ गई 26। सुपर्स में से देख लीजिए किसका 26 के आसपास बैठ रहा है। CH4, methane is 16, O2 is 32, CO that is 28 and C2H2 that is 12 to the 24 plus 2 26। So your answer is C2H2। C2H2 का मतलब क्या हुआ, एसिटिलीन गैस। So your molecular weight indicate your component is C2H2। वन मोर एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या बता रहा है आपको, न्यूमेरिकल नंबर 7 इज अज्यूमिंग फुल्ली डिकम्पोज्ड
the total volume of CO2 released at STP on heating 9.85 gram of BaCO3. Atomic weight of Ba is 137 will be. Now once again आगे ही अभी हमने देखा CaCO3 when decomposed you get CaO plus CO2. So now BaCO3 when decomposed you get BaO plus CO2. Now molecular weight of BaCO3 137 plus 12 plus 3 into 16 is 198.7. So 197 gram can produce 22.4 liter at STP. Then 9.85 gram gives how much? Once again a cross multiplication, you get 1.12 लीटर. देखिए ये सारे के सारे ऑलमोस्ट एसटीपी के न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी होते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा और कुछ स्टेटमेंट के अंदर आपको इक्वेशन खुद से बनाना पड़ेगा. जैसे ये स्टेटमेंट है BaCO3, बट आप सभी को पता है कार्बोनेट कभी भी डिकम्पोज होता है तो ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. तो दैट्स व्हाई दिस न्यूमेरिकल इज रियली वेरी इजी. एक और एग्जांपल आपके बोर्ड पे अवेलेबल है, दैट इज 8. व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 2.5 मोलल 2.5 मोलल स्मॉल m है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. सो बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट NH4OH. सो नाउ NH4OH बनाने के लिए आपको अमोनिया गैस प्लस वाटर लेना पड़ेगा, तब जाके NH4OH बनेगा. नाउ आंसर किस हिसाब से जस्टिफाई करेंगे हम? 2.5 मोलल NH4OH मीन्स 2.5 मोल ऑफ अमोनिया इन 1000 ग्राम. What is the definition of molality? Number of moles of solute divided by solvent in kg. So number of moles of solute क्या हो गया? अमोनिया. अमोनिया कितना मोल हो गया? 2.5 मोल in 1000 ग्राम. So hence 100 cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब और ml. Hence 100 cc solution of ammonia required 0.25 mole. So 0.25 mole multiplied by 22.4 liter is nothing but 5.6 liter. So your answer is C, 5.6 liter. कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल कैसे किया? 2.5 मोलर. 2.5 मोलर का मतलब 2.5 मोल पर 1000 ग्राम. सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 2.5 1000 के लिए, तो 100 के लिए कितना? 0.25. So 0.25 multiplied by 22.4, you get your answer. Next numerical on board, that is numerical number 9. 12 gram of magnesium on reacting completely with acid gives hydrogen gas. The volume of which at STP would be. Now, अब यहाँ पे once again फर्स्ट लाइन के अंदर आपको इक्वेशन खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा. बहुत ही इजी स्टेटमेंट है. मैग्नीशियम completely react with acid. Acid is nothing but HCl. So now Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2. Now Mg का मोलर मास कितना है? ब्रैकेट में दिया हुआ, नहीं दिया हो तो भी 1 से 30 तक के एलिमेंट के मोलिकुलर वेट आपको याद रहने चाहिए. So 24 gram of magnesium will evolve 22.4 liter of H2 at STP. So 12 gram of magnesium will evolve how much? 22.4 multiplied by 12 divided by 24, you get 11.2 liters. So your answer is B, Bombay. Statement number 10. Volume of a gas at STP is 1.12 into 10 to the power minus 7 cc. Calculate the number of molecule in it. अब ये मॉलिक्यूल का मतलब जब भी मॉलिक्यूल आए तो आपको एवोगैड्रो नंबर को याद करना है. एवोगैड्रो नंबर is nothing but 6.022 into 10 to the power 23. So आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे? If I have 22,400 ml of gas at STP, then it has Na means एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल होंगे, that is 6.22 into 10 to the power 23 जितने. But what I have 1.12 into 10 to the power minus 7. So simple, once again cross multiplication कर लीजिए. Divided by 22,400, you get your answer, that is 3 into 10 to the power 12. अब ये सभी के अंदर जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी आप आंसर लेके आ सकते हो.
Last numerical on board, that is 11th. The molecular weight of a gas is 45. Its density at STP. Now once again density is nothing but mass by volume. Simple. कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है. डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम. मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है 45 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होगा. एनी गैस हैविंग वॉल्यूम इज 22.4. सो ये सिंपल 22 टू द 44 और 4 है अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम पर लीटर. सो दैट इज डी इज योर राइट आंसर. So next numerical, the volume occupied by 4.4 gram of CO2 at STP is. Now कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या है 44. तो जो अगर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है तो 4.4 गिव्स हाउ मच. ये तो खुद से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर. नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग वन. कभी कभी स्कूल के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसा ही है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ O2, अमोनिया एंड CO2 एट STP आर. ऑप्शन है इन ऑर्डर ऑफ CO2 इज लेस देन टू दिस, O2 इज लेस देन टू दिस अमोनिया, अमोनिया इज लेस देन टू दिस, O2 इज लेस देन टू दिस CO2, ऑल आर सेम, एंड लास्ट इज अमोनिया इज इक्वल टू CO2 but less than to this O2. बट हमने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस एंड गे-लुसैक्स लॉ दोनों पढ़ा हुआ है गैसियस के लिए. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml ऑफ ईच. 100 ml ऑफ ईच, सभी का आप क्या ले रहे हो 100 ml. सो अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन मींस टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी. क्यों? क्योंकि एसटीपी बताया हुआ है. सो सभी के अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे, सेम रहेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यू स्टेटमेंट्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एसटीपी. शायद आपके बहुत सारे कंसेप्ट आज एसटीपी के क्लियर हो चुके होंगे. अब इसके बाद आप कोई भी डीपीपी सॉल्व करोगे एसटीपी का तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसटीपी.